today we will do question number 6. Now question number 6 is a shopkeeper bought 144 eggs. एक शॉपकीपर ने 144 eggs बॉट किए, खरीदे. ऑफ दीज उनमें से 75 वर सोल्ड आउट. 75 eggs जो है वो उसके बिक गए, उसने बेच दिए. सो हाउ मेनी eggs वर लेफ्ट. अब बाकी उसके पास कितने eggs जो है वो बचे. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटे, टोटल eggs बॉट बाय शॉपकीपर. टोटल कितने eggs शॉपकीपर ने बॉट करे हैं. टोटल eggs bought by, write down in your notebook, bought by shopkeeper is equal to 144. Total eggs 144. Of these, how many eggs were sold out? 75 eggs were sold out. Number of eggs sold out. Number of eggs sold out. अब उसमें से कितने eggs sold हो गए. 75. अब 75 को हम कैसे लिखेंगे. 5 ones हो गया और 7 tens हो गया. 1 के नीचे कुछ भी नहीं आएगा because this is 100. So we subtract 75 eggs from 144 eggs. Now subtract it. 4 is smaller than 5, so we take 1 carry from 4. Here it is 3 and 4 is 14. So 14 minus 5 is equal to 9. 3 minus 7, so it is not possible to subtract 7 from 3. So we take 1 carry from 1. So here it is 0 and this is 13. 13 minus 7 is equal to 6. So this is 0. So how many eggs were left out? टोटल कितने, अब कितने eggs जो है वो बाकी बचे उनके पास. नंबर ऑफ eggs left. नंबर ऑफ eggs left is equal to 69. कितने eggs बाकी बचे. 69. टोटल eggs 144 and number of eggs sold out जो बिक गए, कितने eggs sold हो गए. 75. So we subtract 75 eggs from 144 eggs. So how many eggs were left? There are 69 eggs were left. So student, write down in your notebook and do your work neat and clean in your notebook. So students, start question number 7. Question number 7 is a cricket team scored 295 runs in 2 innings. Cricket team ने जो है 2 innings में कितने runs score करे. 295. 2 innings में. तो if the score of first inning, अगर first inning का score 108 run है, तो second जो है what was the score of second inning? तो second inning का score क्या होगा. ये हमारा पहले total score लिखा हुआ है दोनों innings का. फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इनिंग्स का ये हमारा स्कोर है और ये फर्स्ट इनिंग का है. तो जब हम टोटल स्कोर में से फर्स्ट इनिंग को माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा सेकंड इनिंग का स्कोर होगा. नाउ स्टार्ट आंसर. ए क्रिकेट टीम स्कोर 295 रन्स इन 2 innings. नाउ राइट डाउन टोटल रन्स स्कोर्ड इन बोथ इनिंग्स. टोटल रन्स scored in both मतलब 1 and 2 दोनों innings. both innings दोनों innings का स्कोर क्या है हमारा क्रिकेट टीम का is equal to 295. So if the score of the first inning, यहाँ पर फर्स्ट इनिंग का स्कोर बता रखा है, तो रन स्कोर्ड इन फर्स्ट इनिंग, यानी फर्स्ट इनिंग में कितने रन स्कोर करे हैं. रन स्कोर फर्स्ट इनिंग में कितने रन स्कोर करे हैं क्रिकेट टीम ने. 108. टोटल स्कोर इज 295
एंड रन स्कोर्ड इन फर्स्ट इनिंग। फर्स्ट इनिंग में कितने रन स्कोर करे हैं? 108। तो वी सब्ट्रैक्ट 108 फ्रॉम 295। तो 5 इज स्मॉलर देन 8, so we take carry from 9, it is 8, it is 15, 15 minus 8 is equal to 7, and 8 minus 0 is equal to 8, and 2 minus 1 is equal to 1. So what was the score of the second inning? 187 run. Score of second inning. Score of second inning was is equal to 187 runs. This is the answer. Total score is 295. Score of first inning is 108. So we subtract 108 from 295. We get the answer 187 run. This is the score of second inning. So student, write down in your notebook. जिस तरह मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ बिल्कुल आप मेरी तरह अच्छा अच्छा लिखिएगा, नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा अपनी कॉपी में, एंड यू ऑल डू दिस वर्क इन द नोटबुक। मैं आपको बार बार यही बात रिपीट कर रही हूँ कि ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो आप अपनी नोटबुक में ही करेंगे। So students, I have done question number 6 and 7. 6 and 7. No, now 8 and 9 is your homework. 8 and 9 is same as 6 and 7. Now we will do question number 10. 8 and 9 and question number 11 is your homework. So we will do question number 10. What should be added to 313? यानी 313 में हमें क्या ऐड करना चाहिए टू गेट 502? 502 लाने के लिए हमको 313 में कौन सा नंबर ऐड करना चाहिए? सो विच इज द ग्रेटर नंबर? वी सब्ट्रैक्ट 313 फ्रॉम 502. नाउ राइट डाउन द आंसर. 502 minus 313. So 2 is smaller than 3. So we take carry here. ये जीरो जो है, इस जीरो को अगर हम 10 मानेंगे, वो 10 कैसे मानेंगे? जब हम 5 में से 1 कैरी लेंगे तो यहाँ पर 4 रह गया, और ये हमारा 10 था, ये 10 हो गया। यहाँ पर अगर हम इसको ये 1 कैरी जो है यहाँ आ गया तो 10, इस 10 में से हमने यहाँ पर कैरी लिया है तो ये 2 जो है वो 12 हो जाएगा, और ये 10 की प्लेस पर हमारा यहाँ पर क्या रह जाएगा? 9 रह जाएगा, क्योंकि ये 10 हमने कैसे लिया था? इस ये 0 में से तो 1 माइनस नहीं होगा, तो हमने 0 को 10 करा 5 में से 1 कैरी लेकर, तो यहाँ पर 4 रह गया। अब ये 10 में से 1 कैरी लिया तभी यहाँ पर हमारा 2 से 12 हो गया, तो यहाँ पर 10 की प्लेस पर 9 रह गया। अब आप माइनस करेंगे, 12 माइनस 9 इज 3 इज इक्वल टू 9, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, एंड 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1. सो आंसर इज 189. अब आप इसका आंसर क्या लिखेंगे यहाँ? What should be added? हमने क्या ऐड करा 313 में? 313 में हमने 189 को ऐड किया, तो आप लिखिए 189 should be added, पूरा बिल्कुल वैसे ही लिख दीजिए, to 313 to get 502. यानी 502 को लाने के लिए हमने 313 में किसको ऐड करा? 189 को ऐड करा, तो हमारा आंसर 502 आ गया. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे. सो क्वेश्चन नंबर 8, 9 and 11 is your homework. Do these 3 sums in your notebook, and 3 sums we have done in the classwork, and 3 is your homework. Now this exercise is complete.
from question 1 to question number 11. I have done all the sums. So this is all for today, students. Now thank you and have